In Europe, wake up from your sleep. Open your eyes. The sun of Islam has risen in the unknown land of Qadian. So they may remind everyone of the love of the eternal King. He prayers toward his servants. May Allah enable us to fulfill these words and show the world and demonstrate the great moral conduct and social order of Islam, that they may enter this land and benefit in peace and justice everywhere. Well, after that, our last word is Alhamdulillah Rabbil Alameen. Narae Takbir, Hasrat Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad ki, Khilafat Ahmadiyya, Narae Takbir. Hello. Jazakallah. Our next speech is in the Urdu language, entitled The Promised Messiah Islam, the true servant of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I request Muhammad Inam Gauri Sahab, Nazir Allah Qadian. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. سورہ آل عمران آیت 32. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. سورۃ النساء آیت 70-71. قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلام ثانی. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے. اللہ فرماتا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و فرمانبرداری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے. اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے. ان آیات میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت لازمی ہے. اور پھر اللہ کی محبت کے حاصل ہو جانے کی علامات کیا ہوں گی؟ فرمایا، ایسے لوگوں میں صالحین کا مرتبہ پانے والے نکلیں گے، شہداء کا مرتبہ پانے والے ظاہر ہوں گے، صدیقوں کا مرتبہ پانے والے ظاہر ہوں گے، اور پھر وہ صاحب کمال بھی ظاہر ہوں گے جنہیں نبوت کے انعام سے بھی نوازا جائے گا اور نبوت کے کمالات سے وہ حصہ پانے والے ہوں گے. سامعین کرام، اس مختصر تمہید کے بعد آئیے اب دیکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالی محبت اور کامل اطاعت کا اپنے قولی، فعلی اور حالی کردار سے کیا نمونہ دکھایا. جہاں تک حضور علیہ السلام کے کلام، نظم و نثر کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے تئیں آپ کے دلی جذبات کا اظہار ہوتا ہے، وہ آپ علیہ السلام کی 80 سے زائد تصانیف پر پھیلے ہوئے. میں وقت کی رعایت سے صرف چند نمونے پیش کرتا ہوں. اپنے فارسی اشعار میں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، عجب نوریس در جانے
अजब लालेस दरकाने मोहम्मद, अगर खाही दलीले आशिक़ बाश मोहम्मद हस्त कुरहाने मोहम्मद, सरे दारम फिदाए खाके अहमद, दिलम हर वक्त कुर्बाने मोहम्मद, दिगर उस्ताद रा नामे नदानम के खानदम दर दबिस्ताने पा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद में खुदा ने अजब नूर वदियत कर रखा है और आपकी मुक़द्दस कान अजीब व गरीब जवाहरात से भरी पड़ी है। सो अगर ऐ मुनकिरो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील चाहते हो तो दलीलें तो बेशुमार हैं, मगर मुख्तसर रास्ता ये है कि उसके आशिकों में दाखिल हो जाओ, क्योंकि मोहम्मद का वजूद उसकी सदाकत की सबसे बड़ी दलील है। मेरा सर अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके पापर निसार और मेरा दिल हर वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान रहता है। मैं और किसी उस्ताद का नाम नहीं जानता, मैं तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। इसी तरह एक और फारसी शेर में फरमाते हैं, बादस खुदा बैश के मोहम्मद मुखम्मर गर कुफरी बवत बखुदा सबका, यानी खुदा के बाद मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सरसार। अगर ये इश्क कुफ्र है तो खुदा की कसम मैं सबसे बड़ा काफिर। फिर अपने अरबी कसीदे में फरमाते हैं, उंदुर इलैया बे रहमतिन व तहन्नुनिन या सय्यदी अना अहकलुल गलबानी या हिब्बे इन्नका कद दखलता मोहब्बतन फी मुहजती व मदारिकी व जन्नत मिन ज़िक्र वजहिका या हदीक़त बहजती लम अखलफी लहदिन वला फी आनी। यानी तुम मुझ पर रहमत और शफ़क़त की नज़र कर, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक हक़ीर तरीन ग़ुलाम हूँ। ऐ मेरे महबूब, तू अज़राह मोहब्बत मेरी जान, मेरे हवास और मेरे दिल में दाखिल हो गया है। ऐ मेरी खुशी के बाद, ऐ मेरी खुशी के बाद तेरे चेहरे की याद से मैं एक लहजा और आन के लिए भी खाली नहीं रहा। फिर अपने उर्दू अशार में अपने इश्क और फिदायत के जज्बात का इजहार करते हुए फरमाते हैं, वो पेश हुआ हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है, उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ, वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है। नारे तकबीर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल आलमीन, नारे तकबीर। एक और शेर में फरमाते हैं, बरतर गुमान व वहम से अहमद की शान है, जिसका ग़ुलाम देखो मसीह ज़मान है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कलाम नसर से कुछ इक़्तिबासात पेश करता हूँ। फरमाते हैं, वो आला दर्जे का नूर जो इंसान को दिया गया, यानी इंसान कामिल, वो मलाइक में नहीं था, नुजूम में नहीं था, कमर में नहीं था, आफताब में भी नहीं था, वो ज़मीन के समंदरों और दरियाओं में भी नहीं था, वो लाल और याकूत और ज़मरुद और अलमास और मोती में भी नहीं था, और वो किसी चीज़ अर्ज़ी व समावी में नहीं था, सिर्फ इंसान में था, यानी इंसानी कामिल में, जिसका तम और अकमल और आला और अरफाफट हमारे सैयद व मौला सैयदुल अंबिया सैयदुल इहिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आईना कमालत इस्लाम, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 5 सफ़ा 107-100। इसी तरह फरमाते हैं, हम जब इंसाफ की नज़र से देखते हैं तो तमाम सिलसिले नबूवत में से आला दर्जे का जवामर्द नबी और जिंदा नबी और खुदा का आला दर्जे का प्यारा नबी सिर्फ एक मर्द को जानते हैं, यानी वही नबियों का सरदार, रसूलों का फ़ख्र, तमाम मुरसलों का सरदार, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ज़ेर साया 10 दिन चलने से वो रोशनी मिलती है जो पहले इससे 1000 बरस तक नहीं मिल सकती। सिराज मुनीर, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 12 सफ़ा 82। अब मैं बानी जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी मसीह मऊद मेहदी माक़ूत अलैहिस्सलाम, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ीक़ी ग़ुलाम और आशिक़ सादिक़ हैं, के अफ़आल और किरदार के हवाले से चंद नमूने पेश करते हैं। आपके
हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 1960 ईस्वी के जलसा-सालाना रबवा में तकरीर करते हुए बयान किया था कि ये खाकसार हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के घर में पैदा हुआ और ये खुदा की एक अजीम शान नेमत। मैं उसी आसमानी आका को हाजिर और नाज़िर जानकर कहता हूँ कि मेरे देखने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पर, बल्कि महज नाम लेने पर ही हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसुओं की झिल्ली ना आ गई। आपके दिलो दिमाग बल्कि सारे जिस्म का रुआं रुआं अपने आका हज़रत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से मामूर। इसी तसल्सल में दास्तान इश्क का एक और वाक़या सुनिए। दुनिया में प्यारे से प्यारे वजूद फौत होते रहते हैं, जिनके अजीज़ व क़रीब चंद दिन या चंद माह तक उन्हें याद करके अपने दिलों में कसक महसूस करते हैं। लेकिन ये कैसा महबूब और माशूक है कि जिसके विसाल पर 14 सदियों का तवील अरसा गुजर चुका, मगर आज भी उसका एक आशिक है सादिक उस जांगुदाज वाक़े के तस्वुर से बेचैन होकर आंसुओं से रोता जाता और तन्हाई में अपने महबूब के एक और आशिक हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु का लिए शेर गुनगुनाता है। उनता सवाद अले नाज़री फ़ामी अलैका नाज़िर मन शाह बात का फर्यमुत फ़अलैका कुन्तु हाज़िर। यानी मेरे महबूब, तू मेरी आँख की पुतली था जो आज तेरी वफ़ात की वजह से अंधी हो गई। अब तेरे बाद जो चाहे मरे, मुझे तो सिर्फ तेरी मौत का डर था जो वाक़या हो। रावी हज़रत पीर सिराजुल हक साहब नुमानी का बयान है कि जब मैंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को मस्जिद मुबारक में अकेले टहलते और आंसुओं से रोते देखा तो घबरा कर अर्ज़ किया कि हज़रत ये क्या मामला है और हुजूर को कौन सा सदमा पहुँचा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस वक्त हसन बिन साबित का ये शेर पढ़ रहा था और मेरे दिल में ये आरज़ू पैदा हो रही थी कि काश ये शेर मेरी ज़ुबान से निकले। बस देखिए और सोचिए ये कैसा पाकीज़ा इश्क है कि अपने महबूब की याद ने उसके एक ऐसे आशिक के ज़िक्र को भी ज़िंदा कर दिया जो 1400 साल पहले गुजर चुका। सामीन किराम, बानी जमात अहमदिया अलैहिस्सलाम पर एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि आपने हज नहीं किया। अव्वल तो अरकान इस्लाम में से कलमा, नमाज, रोज़ा और ज़कात के बाद 5वां रुकन हज की इबादत का है और इसके लिए बहुत सी शराइत हैं कि इस सफ़र के इख्तियार करने की इस्तिताअत हो, रास्ते का अमन हो वगैरह, और जब तक ये शराइत पूरी न हो हज फ़र्ज़ ही नहीं होता। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के लिए एक तो रास्ते का अमन मफ़क़ूद था और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने ऐसे अज़ीम शान काम आपके सुबुत फरमाए थे जो हज से भी ज़्यादा मुक़द्दम थे। असल तो दिल की हालत को देखना चाहिए। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दिल की हालत तो ये थी जो आपने अपने एक शेर में बयान फरमाया, जिस्मी यतीर इलैका मिन शौक़ि नाला या लैता कानत हुआ तो तैरा। क्या है मेरे महबूब, मेरा जिस्म तो इश्क के गलबे से तेरी तरफ उड़ना चाहता है, ऐ काश के मुझे उड़ने की ताकत हो। इसी ताल्लुक़ में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साहिबज़ादा हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक रिवायत पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं, एक दफ़ा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तबीयत कुछ नासाज थी और आप घर में चारपाई पर लेटे हुए थे और हज़रत अम्मा जान और हमारे नाना जान हज़रत मीर नासिर नवाब साहब मरहूम भी पास बैठे थे कि हज का जिक्र शुरू हो गया। हज़रत नाना जान ने कोई ऐसी बात कही कि अब तो हज के सर के लिए सफ़र और रास्ते वगैरह की सहूलत पैदा हो रही है, हज पर चलना चाहिए। उस वक्त ज़ियारत हरमैन शरीफैन के तस्वुर में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की आँखें आंसुओं से भरी हुई थी और आप अपने हाथ की उंगली से अपने आंसू पोंछते जाते हैं। हज़रत नाना जान की बात सुनकर फरमाया, ये तो ठीक है और हमारी भी दिली ख्वाहिश है, मगर मैं सोचा करता हूँ कि क्या मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार को देख भी सकूँगा। ये एक खालिसतन घरेलू माहौल की बज़ाहिर छोटी सी बात है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इसमें अथाह समंदर की तुग़यानी लहरें खेलती हुई नज़र आती हैं जो इसके रसूल के मुतालिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के क़ल्ब साफ़ी में मौजूद थी। हज की किस सच्चे मुसलमान को ख्वाहिश नहीं, मगर ज़रा इस वजूद की बेपाया मोहब्बत का अंदाज़ा लगाओ जिसकी रूह हज के तस्वुर में परवाना वार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर पहुँच जाती है और वहाँ उसकी आँखें इस नज़ारे की ताब न लाकर बंद होनी शुरू हो जाती है। सामीन किराम,
जो अपने सीनों में एक साथ दिल रखते हैं, वो खूब समझ सकते हैं कि इस आशिक़ रसूल के पाकीज़ा दिली जज्बात की अल्लाह ताला के नज़दीक क्या क़द्र व कीमत है। और इसी हकीकत की आईनादार ये हदीस नबवी है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, कि बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि एक मोमिन की नीयत, नेक नीयत और पाकीज़ा दिली जज्बात उसके अमल पर सबकत ले जाते हैं और अमल से ज़्यादा कबूलियत का दर्जा और शर्फ पा जाते हैं।